लेट्स वेट फॉर 5 मोर मिनट्स, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
We will wait for 5 more minutes, then start. Hello everyone, I am Prithvi from MLSA community. It's my pleasure to welcome you to today's online session.
where we will be exploring the intricacies of version control with Git and GitHub. In this session, we will embark on a journey into the Git galaxy, understanding what version control is, the role it plays in software development, and how GitHub as a platform elevates collaborative coding to new heights. We will cover fundamental concepts, practical use cases, and tips for seamless collaboration. Whether you are a seasoned developer or just starting your coding journey, there is something here for everyone. Our aim is for each of you to leave this session with a solid grasp of version control using Git and GitHub, and how these tools can streamline your development process. The attendance form will be shared at the end of the meeting, followed by a quiz, so make sure to stay till the end of the session. Hello, everyone. Thank you so much for joining in. This is our second session, and the topic for today's session is Introduction to GitHub. The session will go on for about an hour, and we welcome you all to this event and encourage you to ask questions, engage in discussions, and make the most of this learning opportunity. So let's start with no further ado. But before that, let's take a look at what MLSA is. So let's be familiar with MLSA. I will show you a video about an introductory video about the MLSA. The student ambassador community is a global community of like-minded students that share a passion for technology and for having an impact in the world. It's an amazing thing for people that both like social gatherings and in the same time they like tech communities. It's Microsoft helping folks around our campus. I wanted to improve my skills and I wanted to get connected with people that can help me do that. Best benefit is the access to MS Learn and LinkedIn Learning as well. You get an Azure subscription for tinkering around when you join the community and have completed your first milestone. You also get to be mentored by Microsoft employees. It's really a very wholesome experience where we're all just trying to help each other grow. I saw that people were having a lot of fun, but in the same time, they were learning a lot of stuff. Everything that we have in the community is very inclusive and it welcomes everyone as they are. This is a great place to learn new skills, to connect with people, to create community, to help others. Students accomplish so much in this community. Not only do they build their own skills and their brand, but they create content, they run hackathons, they get mentorship, and they put that all on their resumes. And they get full-time jobs when they graduate. It's really amazing. Anything good that's happening in my career probably started with this program. Be sure to apply for it. You would definitely enjoy being a Microsoft Student Ambassador. Okay, so this was the video. Now just give me a second. Okay, so this was the video, and I hope you guys are familiar with MLSA. Now let's start our session without any further delay. So yeah, this is our code of conduct, and here are our learning objectives for today's session. So firstly, we will be identifying the fundamental features of GitHub. We will be getting familiar with the UI of GitHub, and after that, we will be looking at the repository management. After that, we will be gaining an understanding of the GitHub flow with the help of branches, commits, pull requests, etc. Then we'll be exploring the collaborative features of GitHub by reviewing issues and discussions. At last, we'll be performing a practical where we'll be hosting a website using GitHub Pages. The website will be made in HTML, CSS, and JavaScript. So let's move to the next slide. So here our first topic is what is GitHub, right? So हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? अब क्लाउड कंप्यूटिंग को ही जब हम एक्सपैंड कर लें थोड़ा सा, सो वहीं से हमारा निकल के आता है गिटहब. गिटहब क्या है? गिटहब इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो डेवलपमेंट फेज को मैनेज करने के काम आता है. ओके, सो गिटहब इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म
दैट हेल्प्स टू मैनेज द डेवलपमेंट पेस, ठीक है। एंड गिटहब जो है वो एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं गिट, ओके। एंड गिट क्या है? गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ओके। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये हम अभी अगले स्लाइड में देख रहे होंगे। सो ये थी गिटहब की डेफिनेशन कि गिटहब क्या है। गिटहब इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट यूजेस गिट, एंड गिट क्या है? गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एट इट्स कोर। Then comes the GitHub platform, simplifies the process of collaborating on projects and provides a website command line tools and overall flow that allows developers and users to work together. Yes, collaboration is the core of GitHub. Okay. एंड यहाँ पे 6 पिलर्स है हमारे पास GitHub के, जो मेन फीचर्स भी बोल सकते हो GitHub के। द फर्स्ट वन इज पावर्ड बाय AI, कोलैबोरेशन, प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड स्केल। हम इन 5 पिलर्स को इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे इसी यूनिट में। Then let's move to the next slide. Okay, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो हमने अभी पढ़ा कि गिटहब क्या है। गिटहब इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो यूज करता है गिट, ओके। एंड गिट क्या है? गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? सो इसको ऐसे समझो, सपोज तुम्हारे पास एक फाइल है, ओके। वो फाइल तुमने बना ली, आज बना ली, ओके। एंड उसके बाद 2 दिन बाद तुमने उस फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए, ओके। फिर 5 दिन बाद कुछ और चेंजेस कर दिए सेम फाइल में। सो जो फाइल की तुमने चेंजेस करी हैं और जो चेंजेस जिस टाइम पर करे हैं, इन सब की हिस्ट्री कहीं मेंटेन करना और इन चीज़ों को मैनेज करना, उसी को हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। लाइक ये जो टूल इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, वही होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ओके। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एंड द सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। सो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक फाइल बनाई तुमने, उस फाइल को तुमने फिर कभी किसी और डेट पे खोला, उसमें कुछ चेंजेस करे, ये फाइल F1 थी, फिर ये जो चेंजेस इसमें ऐड हुए इसकी वजह से ये फाइल F2 बन गई, राइट। तो ये वाला जो सिस्टम था इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ओके। बट सिमिलरली एक और तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुम्हारे पास एक फाइल है, एक सॉफ्टवेयर है, ओके, फाइल ए। अब इस फाइल ए या सॉफ्टवेयर ए जो है, इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, राइट। या हो सकता है ठीक है। और इसके बाद हो सकता है तुमने दोनों अलग अलग डेवलपर्स को दे रखा हो, यहाँ पे डेवलपर D1 एंड यहाँ पे डेवलपर D2 मैनेज कर रहा है इसको, राइट। अब हो सकता है कि डेवलपर D1 ने कुछ चेंजेस किए पहले दिन, तो लेट्स सपोज उसको हम दे देते हैं CA चेंजेस करे। फिर इसने कुछ दिन बाद CA1 चेंजेस कर दिए, ठीक है। सिमिलरली बैक एंड पे जो डेवलपर D2 था, ये भी कुछ चेंजेस कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये कर रहा था CB, CB2, इस टाइप के चेंजेस कर रहा था। सो अब हमें सिर्फ इसका ट्रैक नहीं रखना कि इस पर ये वाली चेंजेस हुई इस दिन पे, ये वाली चेंजेस हुई इस दिन पे। हमें इस लेवल पर भी, लाइक इंडिविजुअल लेवल पर भी ये चेंजेस ट्रैक करनी है, ठीक है। सो जब हम ऐसा करने लगते हैं, जो टूल इंडिविजुअल लेवल पर ट्रैकिंग के काम आ जाए, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ओके। ओके, सो मैंने कुछ लिखा भी यहाँ पे, लेट्स सी क्या है। A version control system is a tool that tracks changes to a set of files over time. It allows multiple people to collaborate on a project, keeps a history of changes, and provides mechanism to revert to previous states or branches. Yes, suppose मेरे पास एक फाइल F1 से F2 बनी, जब मैंने उसके अंदर चेंजेस C1 एंड C2 डाले, राइट। अब अगर मैं फाइल F2 में से ये 2 चेंजेस हटा दूं, तो वो ऑलरेडी F1 बन जाएगी, राइट। सो मेन सिस्टम यही होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, ये इसी टाइप के फीचर्स पे काम आता है, ओके। देन वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ कोहेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, यस। देन कम्स व्हाट? देन कम्स द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ओके। वन मोर थिंग मैं यहाँ बताना भूल गया कि ये जो हमने इंडिविजुअल लेवल पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम करा था ना, ये इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी, एक टूल चाहिए था,
और वो टूल है गिट। ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने गिट बनाया। ओके, देन क्या लिखा है, गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मीनिंग दैट ईच डेवलपर हैज देयर ओन कंप्लीट रिपोजिटरी इंक्लूडिंग द एंटायर प्रोजेक्ट हिस्ट्री। ओके, रिपोजिटरीज क्या होती हैं ये भी हम आगे देख रहे होंगे, सो नो वरीज। Then this allows developers to work independently and merge their changes later. It also provides redundancy and enables collaboration with a constant need of a centralized server. Yes. So ये थे version control system and distributed version control system. So let's move to the next slide. Okay. So now comes the pillars of GitHub. So हमने अभी देखा था कि GitHub के 5 pillars थे, AI, collaboration, productivity, security and scale. सब देख लेते हैं कि कैसे इम्पैक्ट करते हैं GitHub को। ओके, let's break down each one of the core pillars of the GitHub enterprise platform: AI, collaboration, productivity, security and scale. So AI, सबसे पहले AI। तो GitHub के अंदर काफी सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो ऑटोमेटेड हैं। ओके, एंड GitHub काफी AI टूल्स भी यूज करता है फॉर डेवलपर्स एंड मैनेजिंग प्रोसेस के लिए। Generative AI is dramatically transforming software development as we speak. Yes, we are all familiar with this. Okay, the GitHub Enterprise platform is enhancing collaboration through AI-powered pull requests and issues, productivity through Copilot, and security by automating security checks faster. Yes, जब हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँगा मैं, उस वक्त मैं दिखाऊंगा भी कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर ऑटोमेशन लगा हुआ है। ओके, लाइक जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं तो काफ़ी सारे फेजेस ऐसे होते हैं जो गिटहब हमारे लिए खुद परफॉर्म कर लेता है, लाइक रिव्यूइंग वगैरह। ओके, इसके अलावा एआई कैसे यूज करते हैं, तो एक टर्म हो सकता है तुम लोगों ने सुना होगा, को पायलट, गिटहब को पायलट। सो गिटहब को पायलट क्या है? गिटहब को पायलट एक जनरेटिव एआई है जो गिटहब प्रोवाइड करता है डेवलपर्स के लिए। ओके, ये एक पेड सर्विस है वैसे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सपोज तुम कोई कोड लिख रहे हो, ओके, तो को पायलट क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में ऑलरेडी रन कर रहा होगा एंड जो भी तुमने कोड लिखा है उसका इंटेंडेड मीनिंग समझने का ट्राई करेगा, एंड उस बेसिस पर ये हो सकता है तुम्हें कुछ सजेशंस दे दे कि लाइक मेक अ चेंज हियर और मेक अ चेंज हियर, या फिर वो सीधा तुम्हें पूरा एक फंक्शन बना के दे सकता है और वो ऑटो कंप्लीट भी कर सकता है। लाइक बहुत सारे फीचर्स होते हैं को पायलट के अंदर, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है पूरा। एंड इससे सिमिलरली और भी काफ़ी सारे एआई टूल्स होते हैं फॉर पुल रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए, इश्यूज को फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है, इश्यूज ढूंढने के लिए, जो टेस्टिंग फेज में काम आते हैं। देन कम्स द कोलैबोरेशन। सो यस, जब हम गिटहब की बात करेंगे देन कोलैबोरेशन की बात तब तब आएगी, बिकॉज गिटहब इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। ओके, कोलैबोरेशन बिटवीन whom? कोलैबोरेशन बिटवीन क्लाइंट्स हो सकता है, डेवलपर्स एंड यूजर्स, डेवलपर टू डेवलपर, ठीक है। And collaboration at its core of everything GitHub does. Repositories, issues, pull requests, and other tools helps to enable developers, project managers, operation leaders, and others at the same company to work faster together, cut down approval times, and ship more quickly. Yes, overall productivity भी बढ़ा देता है ये सारी चीजें। अब प्रोडक्टिविटी ही हमारा नेक्स्ट फेज है यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी में क्या है? Productivity is accelerated with automation that the GitHub Enterprises platform provides. Yes, काफ़ी सारे automation जैसे मैंने बताए थे कि रिव्यूइंग वगैरह के प्रोसेस होते हैं जब हम होस्टिंग कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें GitHub हमारे लिए ऑलरेडी परफॉर्म कर लेता है, तो हमारा बहुत सारा काम बच जाता है उसमें। ओके, विथ बिल्ट इन CI/CD टूल्स डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू द वर्क फ्लो। यहाँ पे CI/CD टूल्स उन टूल्स को बोलते हैं जो ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं, ऑटोमेशन टूल्स को हम बोलते हैं CI/CD टूल्स, ठीक है। The platform gives users the ability to set tasks and forget them, taking care of routine administrations and speeding up day-to-day work. Okay. तो ये थे 3 पिलर्स, AI, कोलैबोरेशन, प्रोडक्टिविटी। अब हमारे पास 2 और पिलर्स हैं जो है सिक्योरिटी एंड स्केल। So yes, security, when it comes to security, जो GitHub है, GitHub is directly owned by Microsoft. Okay. So सिक्योरिटी फीचर्स इसमें डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वाले ही है। एंड व्हेन इट कम्स टू मेजर सिक्योरिटी फीचर्स, इसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स लाइक ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करता है गिटहब। ओके, बट लेट्स सी कि इन डेप्थ क्या लिखा हुआ है।
GitHub Enterprise Platform includes native first-party security features that minimize security risk with a built-in security solution. Yes, and plus your code remains private. Okay, like अगर तुमने कोई रिपोजिटरी बनाई है तो तुम उस रिपोजिटरी को ही मैनेज कर सकते हो कि वो तुम्हें पब्लिक बनानी है, प्राइवेट बनानी है, एंड किस किस को एक्सेस ग्रांट करना है. ओके, तो इस टाइप के फीचर्स गिटहब में देता है. अभी हम अभी देख भी रहे होंगे जब रिपोजिटरी बना रहे होंगे तो हम कैसे चूज कर सकते हैं सारी चीजें. ओके, plus your code remains private within your organization, and at the same time you are able to take advantage of the security overview and depend about. Okay, now comes the scale. Okay, so scaling issue नहीं है गिटहब में कोई भी. फॉर एग्जाम्पल तुम गिटहब में कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि तुम कितनी रिपोजिटरीज बना सकते हो, कितने फाइल्स अपलोड कर सकते हो. ठीक है, देयर इज नो लिमिट टू इट. ओके, अनलिमिटेड लिमिट है वो. ठीक है, एंड गिटहब के बारे में कुछ चीज़ें भी है, लाइक गिटहब इज द लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी. हालांकि इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं अब मार्केट में, बट विथ रियल टाइम डेटा ऑन ओवर 100 मिलियन प्लस डेवलपर्स एंड 330 मिलियन प्लस रिपोजिटरीज हैं, एंड डिप्लॉयमेंट तो काउंटलेस है इस पे. ओके, it has the scale to provide industry changing insights and collaboration capabilities for transformative efficiency. Yes, so इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है गिटहब, इस वजह से काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसी में मिलते हैं, और इसके पास ज़्यादा डेटा है डेवलपर्स के रिगार्डिंग. और कुछ ऑल्टरनेटिव्स है गिटहब के, फॉर एग्जांपल कोडबग, गिटलैब, GCSR, ये शायद से गूगल का है, गूगल क्लाउड सबनेट करके कुछ सबनेट रिपोजिटरी ऐसा कुछ है. ठीक है, एंड देन वनडेव, ये माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है, एंड देन रेडिकल. ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो सिमिलर काम प्रोवाइड करते हैं गिटहब की तरह, बट कुछ फीचर्स कम ज़्यादा. ओके, so these were the pillars of GitHub. Now let's move to the next slide, introduction to repositories. Okay, so ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले let's get familiar with the dashboard. Okay, let's get familiar with the GitHub. Okay, so मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, एंड GitHub पे चलते हैं सीधा. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? हो रही है. ओके, तो मैं सीधा टाइप करूँगा github.com एंड एंटर. तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन था, इसलिए मैंने डायरेक्टली डैशबोर्ड खुला है. ओके, सो ये है डैशबोर्ड. ओके, एंड लेफ्ट साइड में आ रहा है मेरी जितनी भी रिपोजिटरीज है, जितनी भी रिपोजिटरीज मैंने बनाई है वो लेफ्ट साइड में शो हो रहा है. सेंटर में जितने भी ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज है वो शो हो रही है, और इस साइड में कुछ और डेटा लाइक लास्ट चेंजेस एंड कुछ रिपोजिटरीज और उसमें सजेशन में शो हो रही है. सो ये है डैशबोर्ड, ये लैंडिंग पेज जहाँ पे गिटहब खोलते के साथ हम ओपन होंगे. ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या, टोटल मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, तो जैसे ही मैंने होटल मैनेजमेंट सिस्टम सर्च करा, मेरे पास यहाँ फिल्टर के ऑप्शन आ गए, एंड मैंने चलो रिपोजिटरीज पे क्लिक करता है अभी. अब यू कैन सी मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे रिपोजिटरीज आ गए. ठीक है, ये रिपोजिटरी का नेम है, इतना हिस्सा जो है स्लैश के बाद, एंड स्लैश के लेफ्ट साइड में जितना नेम है वो ऑथर्स अकाउंट का नेम है वो. एंड ये देखो, ये जो है ये इसका ऑटोमेशन प्रोसेस है एक, जो गिटहब अपना पता लगा देता है कि हमने कोई रिपोजिटरी बनाई है, कोई फाइल बनाई है, तो उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कौन सी मार्कअप लैंग्वेज यूज हुई है. सो लेट्स सपोज हम एक पाइथन में बनी हुई रिपोजिटरी, पाइथन में बना हुआ सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं फॉर द होटल मैनेजमेंट सिस्टम. सो सपोज HTML है, C# जावास्क्रिप्ट, पाइथन नहीं है क्या? ओके, सो एक पाइथन की फाइल है यहाँ पे. लेट्स सपोज ओपन करते हैं इसको. ओके, सो हियर यू कैन सी कि जब ये है एक रिपोजिटरी. ओके,
हम अभी यही देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में कि एक रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये एक रिपोजिटरी है, यहाँ पे एक रीडमी फाइल है, readme.md फाइल। इसके अंदर तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट इस बारे में है, या स्टेप्स ये है, इसको मैंने इस टेक्नोलॉजी से बनाया है। जैसे इसने अपनी रीडमी फाइल में क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल ये करो, ये प्रोग्राम, ये कमांड्स चला दो पहले, देन ये सी चीज़ें कर दो, ठीक है। एंड अब देखते हैं इसका वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है एक बार। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास 27 कमिट्स, राइट। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के साथ मेरे पास जितने भी कमिट्स हुए हैं अभी तक इस फाइल में, इस रिपोजिटरी पे, वो सारे मेरे पास आ जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएंगे। सो अगर मैं सबसे नीचे जाऊँ तो यहाँ पे एक कमिट है, और कमिट बाय होम दिस ओकन ओरेगन, ठीक है, एंड कमिटेड 3 years ago, टाइम एंड ऑथर दोनों आ रहा है मेरे पास। बट इसके अलावा क्या कमिट था वो भी आएगा मेरे पास। तो ये पहला कमिट था मेरे ख्याल से। सो पहले कमिट में सिर्फ इसने ये फाइल ऐड करी थी, ये सेंटेंस ऐड करा था। लेट्स सी कि और क्या था। ओके, अपडेटेड readme.md, यहाँ पे दूसरा कमिट था ये 3 साल पहले, जिसमें readme.md फाइल को अपडेट करा गया था। ओके, लेट्स सी क्या अपडेट्स हुए थे। ओके, सो ये खुल गया। जो रेड वाला पार्ट है वो मेरा प्रीवियस स्टेट है, एंड जो ग्रीन वाला है, वो जो ब्लू वाला है, वो मेरा न्यूअर स्टेट है। ओके, ये बिफोर अपडेट था और ये आफ्टर अपडेट। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैनेजमेंट की स्पेलिंग शायद से गलत थी, तो वो यहाँ पे चेंज करी है, वो अपडेट में फिक्स करा है इसने। ओके, एंड कमिटेड कब था, 26 Feb 2021। ओके, और इसके साथ यहाँ पे एक कमिट की आईडी भी दिख रही होगी तुम्हें, ठीक है। ये हर एक कमिट का यूनिक होता है। तो इसी तरह से पूरे के पूरे जितने भी अपडेट्स मैंने कर रहे हैं, जितने भी चेंजेस कर रहे हैं इस रिपोजिटरी में, वो स्टोर्ड है इसके अंदर, ठीक है। किस डेट पे थे, क्या थे, और किसने करे थे, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर्ड है। नाउ लेट्स मूव। और कुछ फीचर्स और भी इसमें, जैसे कि जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे कोड है ये पूरा, ठीक है। इसके अंदर मैं जाऊँगा तो इसके अंदर कोड है, ये सारे कोड्स है। अच्छा नहीं, यहाँ पे कोड नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, वो तो इसके अंदर होगा कोड मेरे ख्याल से। सी पाइथन का कोड है इसके अंदर, ठीक है। सो अगर मैं चाहूँ कि ये कोड मैं किसी तरह से डेस्कटॉप में कॉपी कर पाऊँ, ठीक है, लोकली कॉपी कर पाऊँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए काफ़ी सारे वेज़ हैं। एक तो गिट का है तरीका, लाइक जिसमें हमें कोड चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला कोड होता है, ठीक है। हम या तो सीधा उससे कर लें, लेकिन गिट मैं इस सेशन में गिट नहीं सिखा रहा हूँ, गिट के लिए अलग सेशन लगेगा, बिकॉज़ गिट थोड़ा-सा एडवांस हो जाएगा। पहले हम ये देख लेंगे इसमें कि चीज़ें नॉर्मली कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि वही सेम चीज़ें हम गिट की मदद से कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। ओके, सो कोड से कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली, सीधा गिटहब डेस्कटॉप से कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा-सा मैं रेफ़र नहीं करूँगा, बिकॉज़ थोड़ा-सा ट्रिकी है ये यूज़ करना। एंड मैं सीधा ज़िप फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ, उसको अनज़िप कर लूँ, सीधा वहाँ से यूज़ कर लूँ, या फिर जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है एक कोड स्पेस बना लूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे यहाँ कोड स्पेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन, ठीक है। इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा जितने भी फाइल्स थी वो उस रिपॉज़िटरी में, वो सारी मेरी एक अच्छे से प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर ओपन हो जाएगा मेरे ब्राउज़र में। तो यू कैन सी कि मेरा गिटहब ही है, गिटहब के ऊपर ही ये सब कुछ ओपन हो गया है, एंड मैं डायरेक्टली यहीं पे कोडिंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, कोई फाइल ओपन भी कर लूँ मैं तो यस, कोड सारा मेरे को विजिबल है, एक्सेसिबल है। ओके, इस तरह से हम कोड एक्सेस कर सकते हैं इस पर। ओके, अब लेट्स मूव टू आवर स्लाइड। अरे ओके, नाउ कम्स द इंट्रोडक्शन टू रिपॉजिटरी। इंट्रोडक्शन टू रिपॉजिटरी। सो रिपॉजिटरी क्या होती है? ओके, हमने अभी देख लिया कि रिपॉजिटरी दिखती कैसी है, बट रिपॉजिटरी होती कैसी है, होती क्या है? तो रिपॉजिटरी को ऐसा समझो कि रिपॉजिटरी कुछ नहीं है, एक फ़ोल्डर है तुम्हारा, ठीक है?
बट उस फोल्डर के अंदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी है। ओके, उसी चीज को हम रिपोजिटरी बोल देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज अ रिपोजिटरी? अ रिपोजिटरी कंटेन्स ऑल योर प्रोजेक्ट फाइल्स, यस, एंड ईच फाइल्स रिविजन हिस्ट्री। क्या चेंजेस हुए, उस चेंजेस से पहले की वाली फाइल का क्या हाल था, उसमें क्या क्या चीजें थी, ये सारी चीजें जो है एक रिपोजिटरी मेंटेन करता है। ओके, you can use repositories to manage your work, track changes, store revision history, and work with others. Before we dive too deep, let's first start with how to create a repository. It is similar to a folder but additional features. Yes, एक फोल्डर की तरह ही समझो बट कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ। अब देखते हैं कि हम रिपोजिटरी क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने होम पे चले जाता हूँ, वहीं से बताऊंगा। वैसे तो कहीं से भी रिपोजिटरी बन जाएगी। सो ये मेरा डैशबोर्ड है, यहीं पे मैं लैंड करूंगा सबसे पहले जब भी ओपन करूंगा github.com। अब मुझे अगर रिपोजिटरी बनानी है तो मुझे यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, राइट? मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी का एक नाम रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं ओनर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास खुद का है तो मैं अपना ही नाम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड टेम्पलेट, टेम्पलेट मेरे पास अभी कोई है नहीं। टेम्पलेट का मतलब होता है, मान लो तुमने तुम कोई एक तुम कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो मान लो, तो हो सकता है तुम उस फ्रेमवर्क को एज अ टेम्पलेट यूज कर लो, या फिर तुम हो सकता है कि कुछ रीडमी फाइल्स डालना चाह रहे हो उसी सीक्वेंस में, तो उसके लिए हो सकता है तुम टेम्पलेट यूज कर लो। बट मेरे पास अभी कोई टेम्पलेट है नहीं तो वो स्किप कर रहा हूँ मैं। देन एक रिपोजिटरी नेम यूज कर लेते हैं हम। अपन डाल लेंगे क्या, अपन डाल देते हैं इंट्रोडक्शन टू गिटहब। ओके, मैंने ये नाम डाल दिया अपने रिपोजिटरी का। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन डाल लेता हूँ। सपोज मैंने डाल दिया दिस इज फॉर अ वेबसाइट। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट के। ओके, तो इसमें भी लिखा था मैंने पब्लिक किस लिए होता है एंड प्राइवेट किस लिए होता है, राइट? सो यहाँ पे ये विजिबिलिटी के लिए होते हैं तुम्हारे। पब्लिक रिपोजिटरी क्या होती है, किसी को भी एक्सेसिबल होती है इंटरनेट पे। प्राइवेट रिपोजिटरीज क्यों होती है, ये सिर्फ तुम्हें एक्सेसिबल होंगी एंड तुम एक्सप्लिसिटली जिसके साथ शेयर एक्सेस दोगे सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है इसको। तो सिक्योरिटी फीचर्स में आ गई है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं सबको विजिबल कराना चाहता हूँ तो मैंने पब्लिक कर दिया। एंड नाउ कम्स ऐड अ रीडमी फाइल। तो अब ये मेरे ऊपर है, मैं रीडमी फाइल डाल सकता हूँ या नहीं भी डाल सकता। ठीक है, इसके अंदर अगर मुझे कुछ एक्सप्लिसिटली कुछ स्टेप्स डालने होंगे या फिर कुछ चीज़ें रखनी होंगी तो वो मैं रीडमी फाइल के अंदर लिख सकता हूँ। लेट सपोज मैं डाल ही देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट क्लिक द क्रिएट रिपोजिटरी एंड यस, ये बन गई मेरी रिपोजिटरी। ये मेरी रीडमी फाइल है। अगर हम ओपन करें कि रीडमी डॉट एम डी फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लेट सपोज एक बार ओपन करते हैं। ठीक, जितना जो भी मैंने टाइटल लिखा था अपनी रिपोजिटरी का एंड जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा था वो मेरी रीडमी फाइल के अंदर आ गया। ओके, तो ये था हम कि हमने बना दी अपनी रिपोजिटरी इंट्रोडक्शन टू गिटहब के नाम से। ओके, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ऐड अ फाइल टू योर रिपोजिटरी। ओके, अब हम देखते हैं कि हम एक फाइल कैसे ऐड करें रिपोजिटरी में। तो फाइल ऐड करने से पहले हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा, राइट? मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ा था यहाँ पे, मैं पहले कोड इसका कॉपी कर लूँ मैं। ओके, एंड इसको बंद कर लूँ। अब सपोज मैं एक फाइल बना लेता हूँ पहले। मैं उसके लिए मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैं सपोज जाऊँगा अपने डाउनलोड्स पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं डालूंगा इंट्रो इंट्रो टू गिटहब। ओके, मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ एंड मैं खोल दूंगा वो
क्या है ओपन फोल्डर? ओके, सो मैंने ये वाले फोल्डर खोल लिया अपना जो मैंने जस्ट अभी बनाया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से। ओके, और यहाँ पे मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। ये सिंपल सा एक बस टेम्पलेट बना रखा है मैंने, ठीक है। ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। सपोज मैं एक बार देख भी लेता हूँ कि कोड दिखता कैसा है, HTML कोड ऐसा दिखता कैसा है। यू कैन सी इस टाइप की वेबसाइट है, बट ये मेरे लोकल होस्ट पे, मेरे पोर्ट नंबर 5500 पे होस्ट हो रही है ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि मैं लोकली अपने कंप्यूटर पे होस्ट की हुई है अभी। पहले इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको काट देते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो फाइल बनाई है मैंने, उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है, ऐड करना है। तो बस सिंपली ऐड फाइल पे जाओ। मैं सीधा क्रिएट का भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधा लिखना स्टार्ट कर दूँ मैं तो कोड, या फिर अपलोड फाइल पे जाऊँ एंड यहाँ पे फाइल चूज कर लूँ मैं, इंट्रोडक्शन टू गिटहब, एंड ये वाली फाइल है। एंड जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ पे अपलोड हो गई। अब मुझे यहाँ पे चेंजेस क्या क्या है इसमें, या कमिट करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो एक टाइटल देना पड़ता है, एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडेड फाइल, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एडेड इंडेक्स फाइल, ओके। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि कमिट डायरेक्टली टू अ मेन ब्रांच। इसको मैं अभी मेन पे रख देता हूँ, ठीक है। न्यू ब्रांच पे भी नहीं जाते हैं, मेन पे रख देता हूँ। एंड यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे index.html ऐड हो गया इसमें। लेट्स सी कि जो इसके अंदर कोड लिखा था वही है, यस, सेम वही कोड है जो लिखा था मैंने। तो हमने देख लिया कि कैसे रिपोजिटरी बनती है, कैसी रिपोजिटरी दिखती है, उसके अंदर फाइल कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो यहाँ पे वही चीज़ें स्टेप्स में लिखी हुई है, ये देख सकते हो। जब मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा तो वहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। देन कम्स व्हाट आर जिस्ट बोलते, सॉरी। तो सिमिलरली टू रिपोजिटरी, जिस्ट एक टाइप का टूल होता है, या एक तरीका बोल लो, जिससे हम इंस्टेड ऑफ शेयरिंग अ फुल रिपोजिटरी, हम कोड के स्निपेट्स, कुछ फंक्शंस, कुछ पार्ट्स को हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली टू रिपोजिटरीज, जिस्ट आर अ सिंप्लीफाइड वे टू शेयर कोड स्निपेट्स विद अदर्स, ठीक है। और हर जिस्ट एक गिट रिपोजिटरी होती है। Every gist is a Git repository which you can fork and clone and can be either public or secret. Yes, public gist जो होते हैं वो सबको विजिबल होते हैं, बट जो प्राइवेट जिस्ट होती हैं, वो वेट, पहले मैं पब्लिक ही बता दूं। जो पब्लिक जिस्ट होती है वो सबको एक तो एक्सेसिबल होती है, वो सर्चेबल भी होती है, एंड कोई भी उनको देख सकता है, ओके। बट जो प्राइवेट जिस्ट होती है वो बस सर्चेबल नहीं होती, ओके। लाइक अगर तुमने स्पेसिफिकली उसका यूआरएल कॉपी करके अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया, देन इट इज एक्सेसिबल टू दैट फ्रेंड, बट वो ऐसे सर्चेबल नहीं होगी, ओके। सीक्रेट जिस्ट आर नॉट searchable, they aren't entirely private. If you send the URL to a secret gist to a friend, they will be able to see it, okay। ये होती थी जिस्ट। एंड जिस्ट बनाते कैसे हैं, जिस्ट की वैसे तुम्हें जरूरत ना पड़े, कई बार हो सकता है, बट मैं दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ओपन करते ही मेरे पास जहाँ पे रिपोजिटरीज का ऑप्शन था, वहीं पे नीचे न्यू जिस्ट का भी ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ से तुम जिस्ट बना सकते हो। नाउ अब जिस्ट की तरह एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं विकीज। और विकीज एक्चुअली जिस्ट की तरह नहीं, ये होती है रीडमी फाइल की तरह। रीडमी फाइल की तरह होती है, बट रीडमी फाइल तुम्हारा छोटे से चीज़ें बताती है, ठीक है। विकीज तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताती है, ठीक है। Every repository on github.com comes equipped with a section for hosting documentation called a wiki. Yes, and you can use your repositories wikis to share long form content about a project, such as how to use it,
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो भी तुम्हारी चीजें हैं, एंड हाउ यू डिजाइंड इट और इट्स कोर प्रिंसिपल। ओके, और विकीज एंड रीडमी फाइल में बस यही डिफरेंस है कि रीडमी फाइल जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है, एंड हम रिपोजिटरी बनाते वक्त इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट विकीज जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं बनती, हमें इन्हें बनाना पड़ता है। ओके, while a readme file quickly tells what a project can do, you can use a wiki to provide additional documentation. बाय द वे, तुम विकीज ऐसे जनरली यूज नहीं करोगे, बट इंडस्ट्री वगैरह में विकीज यूज करते हैं जब हमें काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ओके, it's worth a reminder that if your repository is private, only people you have at least read access to your repository will have access to your wiki. Yes, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी जो रिपोजिटरी प्राइवेट है, देन वो विकी भी प्राइवेट ही होगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ गिटहब फ्लो। यस, अब हम आ रहे हैं थोड़े से मेन टॉपिक्स पे, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ गिटहब फ्लो, जिसपे हम देखेंगे ब्रांचेस क्या होते हैं, बनाते कैसे हैं, कमिट्स क्या होते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्या क्या होती है, एंड द गिटहब फ्लो। ओके, so let's move. ओके, सबसे पहला टॉपिक है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस क्या होती है, हमने भी देखा था जब हम कमिट कर रहे थे, हमें एक ऑप्शन आया था पहला कमिट करते वक्त, मेन करके यहाँ पे था कमिट टू मेन, और यहाँ था कुछ कमिट टू अ ब्रांच। ठीक है, हमने मेन वाला सिलेक्ट करा था। ठीक है, हमने ऐसा क्यों करा? वेल, हमने ऐसा इसलिए करा था वैसे तो, बिकॉज हमारे पास कोई ब्रांच थी नहीं, और उस वक्त हमें नीड भी नहीं थी, बिकॉज वो हमारा पहला कमिट था। ओके, बट ब्रांच होती क्या है? ब्रांच का मतलब है, मान लो तुम्हारे पास एक कोड है, एक जगह है तुम्हारे पास, मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोड रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर रखा हुआ है पूरा। ठीक है, और तुम इसी में डायरेक्टली चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, चेंजेस C1 तुमने इसी में कर दिए। अब हो सकता है तुम्हारे चेंजेस की वजह से इसमें कुछ बग आ जाए। ठीक है, देन ये तुम्हें वापस से नए चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर इसको हटाना पड़ेगा, या हो सकता है तुम्हारा पूरा सॉफ्टवेयर ही खराब हो जाए इसकी वजह से। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हम क्या करते हैं, हम जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है, हम उस सॉफ्टवेयर को रेप्लिकेट कर लेंगे कहीं पे। ठीक है, और इस पर हम चेंजेस प्रोवाइड करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि ओके, क्या ये अच्छे से फंक्शन कर रहा है। अगर ये सही से फंक्शन कर रहा है, देन हम वो चेंजेस मेन सॉफ्टवेयर में डालेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्रांचिंग। लेकिन हम इसको करते कैसे हैं, ये भी देखते हैं अभी। इन द लास्ट सेक्शन वी क्रिएटेड अ न्यू फाइल इन द लास्ट सेक्शन, along the way to you also created a new branch in your repository. Yes, जो हमने रिपोजिटरी बनाई थी, उसी के साथ हमने एक ब्रांच भी बना दी थी, जिस ब्रांच को हमने बोला था मेन। यस, मेन भी एक ब्रांच है। ओके, and branches are an essential part of the GitHub experience because they are where we can make changes without affecting the entire project we are working on. Yes. Your branch is a safe place to experiment with new features or fixes. If you make a mistake, you can revert your changes or push more changes to fix the mistake. Yes, okay. So like वही है कि इसमें अगर दिक्कत आ गई, इसमें कुछ चेंजेस करे मैंने और इसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो यस, मेरा ये जो है ये आइसोलेटेड है पूरा, इसको इफेक्ट नहीं होगा इसकी वजह से। मैं इसी स्टेप पर सब कुछ सही कर सकता हूँ वापस से, एंड देन जब सही से परफॉर्म कर जाइए, देन मैं वही सेम चेंजेस आगे भेज सकता हूँ। ओके, इफ यू मेक अ मिस्टेक, यू कैन रिवर्ट योर चेंजेस टू मेक more changes to fix the mistake. Your changes won't update on the default branch until you merge your branch. Yes, अब ये merging क्या होती है ये हम अभी देखेंगे, बट अभी ये ब्रांचेस हमारा क्लियर होना चाहिए। ओके, अब एक बार देख लेते हैं कि ब्रांचेस बनाते कैसे हैं। ठीक है, ब्रांचेस ब्रांचेस तो कर रहे हैं हम, ब्रांचेस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैं रिपोजिटरी बना निकाल लूँ अपनी वो वाली GitHub। ओके, अब मुझे ब्रांच बनाना है, तो ब्रांच बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे एक मेल लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे इस पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे, और यहाँ पे नेम लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख दूँ यहाँ पे, क्या लिख दूँ, होम पेज, नहीं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, चलो कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। अब ये लिखते के साथ मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट ब्रांच कॉन्टैक्ट्स डॉट पेज फ्रॉम मेन। यहाँ पे डॉट मैंने बस उसके लिए दिया है, ऐसे रख लो इसको। ठीक है, क्रिएट ब्रांच कॉन्टैक्ट्स डॉट पेज फ्रॉम मेन। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, मेरी एक ब्रांच बन जाएगी।
अब मेरे पास 2 ब्रांचेस हो गई होंगी यहाँ पे, एक तो मेन और एक कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। अब अगर मैं कोई कॉन्टैक्ट पेज पे कोई चीज़ अपलोड करूँगा तो फिर वहाँ से मुझे एक पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, मर्जिंग करनी पड़ेगी, तब वो जाके मेन रिक्वेस्ट पे एक्सेस होगी, मेन ब्रांच पे डिप्लॉय होगी। ओके, अभी वो भी देखते हैं कि पुल रिक्वेस्ट वगैरह क्या चीज़ है। ब्रांचेस हो गए। देन है वाटर कमिट्स। तो हमने अभी देखा था कि जब हम बना रहे थे, जब हमने पहली हमने फाइल डाली थी रिपॉजिटरी के अंदर, तो वहाँ पे लिखा आ रहा था नीचे कमिट, राइट। कमिट का मतलब होता है कि जो हमने चेंजेस करे हैं उसको डन कर दो, ओके कर दो, कंफर्म द चेंजेस, ऐसा मान लो। कमिट का मतलब होता है कंफर्म द चेंजेस, ऐसा मान के चलो, ठीक है। As you might have noticed in the previous unit, adding in a new file into the repository, you needed to push a commit. Yes, हमने देखा था। अब commit होता क्या है? A commit is a change to one or more files on a branch. Yes, हमने किस ब्रांच पे करा था? हमने मेन ब्रांच पे करा था, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज है, every time a commit is created, it's assigned a unique ID and tracked. यहाँ पे है वो unique ID, ये हमारा एक commit था, ये भी हमारा एक commit है, और ये कमिट्स की आईडी है, जो हमने होटल मैनेजमेंट में भी देखा था, होटल मैनेजमेंट सिस्टम पे भी देखा था हमने कि यहाँ पे ऑथर का नाम था, यहाँ पे उसका ड्यूरेशन टाइम था, यहाँ पे जो भी कमिट था कमिट का नेम था, और यहाँ पे उसकी आईडी है, ओके। यहाँ पे कौन से ब्रांच के अंदर वो कमिट हुए हैं, ठीक है। Commits provide a clear audit trail for anyone reviewing the history of a file or linked item such as an issue or pull request. Yes. तो ये था कमिट के बारे में, ओके। हमने कमिट तो वैसे देख ही लिया अभी कि हमने कमिट कैसे करा था। जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे, लेट्स सपोज ये भी देख ही लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ readme.md फाइल है, राइट। उससे भी पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे 2 कमिट ऑलरेडी हो रखे हैं मेरे पास, देखता हूँ कौन कौन से होंगे। एक तो हमने इनिशियल कमिट नाम से दिया था, राइट, जिसके अंदर हमने readme.md फाइल डाली थी, और एक जो था उसमें हमने अपनी इंडेक्स फाइल डाली थी, ठीक है। ये देखो, ये पूरा ब्लू है, यानी कि ये ऐड हुआ है, पूरा नया है, ठीक है। अब सपोज मैं एक चेंज कर दूं, कुछ अपनी रीडमी फाइल के अंदर कुछ चेंज कर दूं, यहाँ पे जाऊंगा एडिट दिस फाइल, और यहाँ पे कुछ लिख दूंगा मैं, सपोज नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे इज, डेट क्या है, 18th जनवरी, एंड अब यहाँ पे कर दूंगा मैं कमिट चेंजेस। मेरे पास ये कमिट इसका मैसेज पूछेगा, ये टाइटल पूछेगा, तो मैंने क्या करा है, अपडेट करा है readme.md फाइल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ टुडेज डेट, और मेन ब्रांच पे करना था तो मेन ब्रांच पे कर दिया मैंने। अब सी, ये चेंज हो गया यहाँ पे। अब मैं एक बार पीछे जाऊं, तो यू कैन सी मेरे पास 3 कमिट्स हो गए। अब एक बार देखते हैं कौन कौन से कमिट हुए हैं। मैंने इनिशियल कमिट करा था, जिसमें मैंने मेरी फाइल पूरी की पूरी रिपोजिटरी बनी थी, फिर एडेड फाइल जिसके अंदर index.html मैंने ऐड करा, फिर मेरी अभी वाली जो है कमिट, जिसके अंदर मैंने readme.md फाइल को अपडेट करा। क्या अपडेट करा वो भी देख लेते हैं। तो यू कैन सी मैंने कुछ रिमूव नहीं करा, मैंने एक नई चीज ऐड करी, वो है ये ब्लू में, टुडे इज 18th जनवरी, ठीक है। तो ये था कमिट। अगर कुछ और चेंजेस वेंजेस कर दूं मैं तो, या फिर इस कमिट के बारे में कुछ कमेंट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। कि हो सकता है इस कमिट के अंदर कुछ गलत है, आज की डेट 18 नहीं, आज 20 है सपोज, तो मैं कमिट के बारे में कमेंट लिख सकता हूँ कि ओके ये गलत लिखा है, और फिर कमेंट कर सकता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा पुल रिक्वेस्ट। यस, अब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? पुल रिक्वेस्ट इज द मैकेनिज्म used to signal that the commits from one branch are ready to be merged into another branch. इसके कहने का मतलब है, हमें पता है ये मेन ब्रांच है,
मेन ब्रांच जिसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर है, राइट। इससे मैंने एक ब्रांच निकाल ली जिसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर का डमी रख लिया और इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, चेंजेस C1 मार दिए इसके अंदर, चेंजेस C1 कर दिए इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है मैं अब डायरेक्टली मर्ज नहीं करने वाला। जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बैठा है मेन ब्रांच पर, मैं क्या करूंगा, मैं एक पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा यहाँ पे, क्या बनाऊंगा, एक पुल रिक्वेस्ट। और पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट का मतलब है कि जब सब कुछ सही है मेरे हिसाब से, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है चेंजेस के साथ, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर को बोलूंगा कि प्लीज ये जो जितने भी चेंजेस है इसको पुल कर लो टुवर्ड्स मेन ब्रांच, ओके, मेन ब्रांच में पुल कर लो, ठीक है। इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। अब वैसे तो इसके बाद जब मैं पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा, पुल रिक्वेस्ट के बाद जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उसको रिव्यू करेगा कि जितने भी चेंजेस है क्या वो सही है, सही से इम्प्लीमेंटेड हुए हैं, सबसे सही से काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर सब कुछ सही होगा तो वो मर्ज कर लेगा इसमें, ठीक है, वरना हो सकता है वो डिक्लाइन हो जाए, ठीक है। द टीम मेंबर सबमिटिंग द पुल request one or more reviewers to verify the code and approve the merge. These reviewers have the opportunity to comment on changes, add their own or use the pull request itself for further discussion. Yes, review phase में ये चीजें हो सकती है, ठीक है। Once the changes have been approved, if approval is required, yes, हम तो अभी तक क्या कर रहे हैं, हम तो मेन पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं। जो भी हमने रिपोजिटरी में अभी चेंजेस करे, जो मैंने redmo.md फाइल के अंदर आज की डेट ऐड करी, उसमें मैंने क्या करा, उसके अंदर मैंने सीधा मेन ब्रांच पे कमिट कर दिया था। मैंने ब्रांच से कुछ करा ही नहीं, कोई ब्रांच मैंने एक बनाई है बट उस पर मैं गया ही नहीं, मैंने डायरेक्टली इस पे कमिट करा है, इस पर नहीं करा कमिट, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो अप्रूवल होगा, उसके बाद वो पुल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली मर्ज कर दी जाएगी, ठीक है। द पुल रिक्वेस्ट सोर्स ब्रांच is merged into the base branch. Yes. So now let's move to the GitHub flow. So अब GitHub flow को समझना पड़ेगा हमें, तो इसको सीधा स्टेप्स देखते हैं कि हो क्या कह रहा है। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हम एक ब्रांच बना रहे हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि हमने एक रिपोजिटरी बना रखी है, ठीक है। रिपोजिटरी बना रखी है तो उसके साथ उसकी पहली ब्रांच भी बन गई जो कि थी मेन ब्रांच, ठीक है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमने पहला स्टेप क्या करा, हमने एक ब्रांच बना ली, इससे एक ब्रांच बना ली, ठीक है, ताकि हम उस ब्रांच पर चेंजेस कर सकें जो अफेक्ट ना करे मेन ब्रांच को। सेकंड चेंजेस क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, वो है टू मेक चेंजेस। अब मैंने यहाँ पर जो भी मेरी फाइल थी उस फाइल के अंदर चेंजेस करे, ठीक है, चेंजेस कर दिए। उसके बाद क्या है थर्ड स्टेप, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है मुझे, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है मुझे। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा रिव्यूइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और फीडबैक, ये सारी चीजें। एक मिनट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा इसका, जो हो सकता है प्रोग्रामर ही करे या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो करे, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जब सारे रिव्यूज पास हो जाएंगे, सब कुछ सही होगा, सही काम कर रहा होगा, देन मर्जिंग आएगी, तो ये हो जाएगा मर्ज मेन ब्रांच के अंदर। एक बार ये मर्ज हो गया, उसके बाद हमारे पास है सिक्स्थ स्टेप जो कि है ऑप्शनल। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एक बार वो मर्ज हो गया तो हो सकता है तुम डिलीट कर दो ये ब्रांच, तुम्हें कोई नीड तो है नहीं इस ब्रांच की, ओके। ओके, ये बोलता है हमारा गिटहब फ्लो, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम भी है मेरे पास, लेट्स सी। तो ये है एक गिटहब फ्लो, एक प्रॉपर गिटहब फ्लो का डायग्राम। इससे समझ सकते हैं हम कि एक मेन ब्रांच थी हमारे पास, ओके। इसमें से मैंने एक ब्रांच बना ली, एडिशनल ब्रांच बना ली जिसका नाम दिया मैंने फीचर, ठीक है, क्रिएट फीचर ब्रांच फ्रॉम मेन, एक ब्रांच मैंने बना ली इससे, ओके। इसके अंदर क्या करा मैंने, अब चेंजेस कमिट करे, चेंजेस कमिट कर दिए। चेंजेस कमिट करने के बाद मैंने क्या करा, एक पुल रिक्वेस्ट बनाया। जब मुझे लगा कि मेरा कोड सही है, मैंने एक पुल रिक्वेस्ट बना दिया। अब यहाँ पे बैठा था एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी बैठे, ठीक है, यहाँ पे
एक सबमिट पुल रिक्वेस्ट कर दी मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा रिव्यूइंग एंड डिस्कशन या फीडबैक जो भी है, ठीक है। एक बार सारे फीचर्स वगैरह सही से इम्प्लीमेंटेड है, ये सब चीज़ें रिव्यू हो जाएंगी, सब कुछ पास आउट हो जाएगा अच्छे से, देन हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे। यस, मर्ज फीचर ब्रांच इनटू मेन ब्रांच। ओके, ये था हमारा द गिटहब फ्लो। इसके बाद आता है हमारे पास इश्यूज एंड डिस्कशन, ठीक है। इश्यूज क्या होते हैं, डिस्कशंस क्या होते हैं, इश्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्कशंस कैसे क्रिएट करते हैं, इनेबल करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ये जो दो फीचर्स है ना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटिव फीचर्स हैं फॉर फीडबैक और रिव्यूइंग के लिए, ठीक है। In this unit, we are learning about issues and discussions, two other pieces that contribute to the collaborative nature of the GitHub Enterprise platform. Issues क्या होते हैं? GitHub issues were created to track ideas, feedback, tasks, or bugs for work on GitHub. Okay, सपोज तुमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया और वो पब्लिक है, सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो तुम्हें कोई एक मैकेनिज्म तो चाहिए ना। सपोज देयर इज अ यूजर U1 आया और इसने तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बग फाइंड कर लिया। ओके, अब इसको कोई मैकेनिज्म चाहिए जिससे ये तुम्हें बता सके कि ओके तुम्हारे सॉफ्टवेयर में इस जगह पे ये बग है या ये इश्यू है, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म कौन देता है, वो प्लेटफॉर्म देता है इश्यूज। तो ये जो यूजर U1 है वो गिटहब के इश्यूज में आके एक इशू बना सकता है तुम्हारे इशू, मतलब एक टूल हमें अभी दिखाएंगे कि कैसे इशू क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक इशू बना सकता है, एक इशू बना सकता है यहाँ पे, एंड ये इशू फिर जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो चेक कर सकता है इन इश्यूज को। GitHub issues were created to track ideas, feedback, tasks, or bugs for work on GitHub. The different way to create an issue from a repository, an item in a list, task list, a note in a project, a comment in an issue or pull request, a specific line of code, or a URL query. मतलब तुम एक कमेंट लिख सकते हो, नोट डाल सकते हो एक प्रोजेक्ट की रीडमी फाइल में, या फिर बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो इशू बताने के, लेकिन हम जो भी देख रहे होंगे वो देखेंगे एक रिपोजिटरी से कैसे इशू बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू द गिटहब पेज। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये मेरा रिपोजिटरी ओपन है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है इश्यूज का। इश्यूज पे क्लिक करा मैंने, बहुत बढ़िया, एंड यहाँ पे गया न्यू इश्यूज पे। अब यहाँ पे टाइटल मेरे को ऐड करना पड़ेगा, कुछ हो सकता है इशू इन रीडमी फाइल, इशू इन रीडमी फाइल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में द डेट इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, लेबल्स वगैरह। अब लेबल्स मेरे पास बहुत सारे हैं, ये क्या चीज़ किस टाइप का इशू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इशू हो सकता है ये, या हो सकता है कि इनवैलिड इशू, हेल्प या क्वेश्चंस, वांट फिक्स, ऐसे कुछ कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर दिया, हो गया मेरा ये डॉक्यूमेंटेशन का टैग आ गया। अब मैं करूँगा सबमिट न्यू इशू पे क्लिक, एंड ये इशू मेरा क्रिएट हो चुका है। और ये जो कमेंट है ये जो भी यूज़र होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको विजिबल होगा। अब इसको थोड़ा और ओपन लेवल पे देखना है तो लेट्स सी। सपोज मैं सर्च में जाऊँगा, यहाँ पे डाल दूँगा वही होटल मैनेजमेंट अपना या ऐसा भी बढ़िया एक cal.com चलते हैं हम चलते हैं cal.com। तो cal.com क्या है, cal.com एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। चीज़ें मैनेज करने के काम आता है ये, ठीक है। और ये देख सकते हो ये प्रोजेक्ट है। तो हम इस प्रोजेक्ट के रिपोजिटरी पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे cal.com,
इस पे जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स है। कितनी सारी फाइल्स है, ये इनकी रीडमी फाइल्स है। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और कमिट्स देख सकते हो 8970, इतने सारे कमिट्स हो रखे हैं यहाँ पे। और इश्यूज में देखूँ तो 563 इश्यूज पेंडिंग है अभी, ठीक है। एंड पुल रिक्वेस्ट 98 पुल रिक्वेस्ट अभी वेट कर रही है मर्ज होने का। अब यहाँ इश्यूज पे आ गया मैं, तो मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से बग से कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं कर रही होंगी इस cal.com पे, ठीक है। जैसे लेट्स सी, जैसे कौन कौन से हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड सम। बग है एक, क्या बग है, रीडायरेक्ट टू एपीआई एंड पॉइंट, खोल के देखते हैं क्या चीज है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि इशू की समरी दे रखी है, इसने स्टेप्स दे रखे हैं और रिजल्ट क्या है, ये सब चीजें इसने बता रखी है इसमें। तो इस तरह से इश्यूज हेल्प कर रहा होगा जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेटर है cal.com का, वो इन सब चीज़ों को पढ़ सकता है एंड देन उस हिसाब से कुछ नेसेसरी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। ये है वन ऑफ द मेन कोलैबोरेटिव फीचर्स फॉर गिटहब। अब इसी तरह से हमारे पास एक आता है एक आता है डिस्कशन। अब डिस्कशन में क्या है, सपोज मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक है जो नॉन टेक्निकल है, ठीक है। सपोज यूआई के बेसिस में, या फिर मैं बोल रहा हूँ कलर, कि मुझे इस पेज का कलर अच्छा नहीं लग रहा, इसका थीम अच्छा नहीं लग रहा, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है, तो उसके लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए ना। और वो जो जगह, वो जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं डिस्कशन, ठीक है। इन दिस यूनिट वी आर लर्निंग अबाउट इशू, ठीक है। डिस्कशन discussions are for conversations that need to be accessible to everyone and aren't related to code. Discussions enable fluid open conversation in a public forum. और सेक्शन के अंदर हम इस सेक्शन के अंदर क्या देखने वाले हैं, हम दो चीजें देखेंगे कि डिस्कशन इनेबल कैसे करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ कैटेगरी, जैसे हमने अभी देखा था कि जो इश्यूज थे, इश्यूज में भी हमने कुछ लेबल्स ऐड करे थे, ठीक है, बहुत सारे लेबल्स। उस तरह से कुछ कैटेगरीज भी है डिस्कशन की, ये कुछ कैटेगरीज हैं। अनाउंसमेंट हो सकता है, जनरल आइडियाज हो सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं, Q&A, शो एंड टेल, ठीक है। अब डिस्कशंस एक ऐसा टॉपिक है ना जो पहले से इनेबल्ड नहीं होता, ठीक है, हमारे पास। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो अपनी रिपोजिटरी पे जाना पड़ेगा हमें। ये किसी और की रिपोजिटरी है तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेस नहीं है। अब ये होगी मेरी रिपोजिटरी। अब इस रिपोजिटरी पे अगर मैं जाऊँगा सेटिंग्स पे, एंड सेटिंग्स पे थोड़ा सा नीचे 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 किधर गया, डिस्कशंस किधर गया भाई, हाँ। देखो यहाँ पे एक विकीज का ऑप्शन है, यहाँ इश्यूज का भी ऑप्शन है, एंड सिमिलरली यहाँ पे एक डिस्कशंस का भी ऑप्शन है। इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा, एंड सिमिलरली फॉर इश्यूज एंड विकीज, ठीक है। अब अगर मैं सेटअप डिस्कशन पे कर दूंगा क्लिक, तो यहाँ पे एक डिस्कशन आ गया मेरे लिए। यहाँ पे इसने ऑलरेडी एक टेम्पलेट लिख के मेरे लिए दे दिया है कि ये है, एंड टाइटल ये है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट है। हो सकता है मैं कैटेगरी डिफरेंट चूज करना चाहूँ तो कैटेगरी चूज कर लो यहाँ से, कौन सी करनी है, किस टाइप का डिस्कशन तुम्हें क्रिएट करना है, आइडियाज के लिए, पोल्स के लिए, ठीक है। ये था हमारा डिस्कशन, एंड इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर गिटहब पेजेस। और ये है हमारा लास्ट टॉपिक आज का। गिटहब पेजेस क्या है, सपोज हमने इतने सारे फाइल्स वगैरह बना ली, इतने सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने कोई फाइल बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको होस्ट कर दूँ मैं इंटरनेट पे, ठीक है, कहीं से भी एक्सेसिबल हो वो, ठीक है, लोकली शिफ्ट ना कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ होस्टिंग सर्विसेज होती है, ठीक है। सिमिलरली गिटहब पेजेस भी एक होस्टिंग सर्विस है जो फ्री में प्रोवाइड करता है गिटहब, और तो तुम कितनी भी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, कोई ऐसी लिमिट नहीं है इससे, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है गिटहब पेजेस की। फॉर एग्जांपल क्या लिमिटेशंस है, कि ये सिर्फ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट्स के लिए काम करता है। हो सकता है तुम रिएक्ट या फिर नेक्स्ट पे बनी हुई वेबसाइट भी होस्ट कर पाओ, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तुम्हें डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, कुछ कमांड्स होते हैं जो तुम्हें रन करने होते हैं। आई कांट रिकॉल द कमांड्स, बट शायद से GH पेजेस करके कुछ कमांड होती है, आई गेस सो। वो चीज़ें तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं,
यूटिल्स वाली फाइल में कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी अगर तुम इन तीनों से बनी हुई कोई फाइल को होस्ट नहीं करना चाहते हो तो। So GitHub Pages is a static site hosting service that takes HTML, CSS, and JavaScript files straight from a repository on GitHub. Optionally, you can run the files through a build process and publishes a website. Let's see how to host a website using GitHub Pages. चलो अब देखते हैं। तो अगर मैं आ जाऊँ अपने कोड पे, तो सबको यहाँ तक पता है कि मैंने एक रिपोजिटरी बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक फाइल डाल दी index.html के नाम से, और इस index.html के अंदर मैंने कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है, और सबको ये भी पता है कि ये दिखता कैसा है। मैंने अभी दिखाया भी था जब इसको मैंने VS कोड पे लोकली होस्ट करा था। तो ठीक है, अब लेट्स सी कि इसको होस्ट कैसे करूँ मैं गिटहब पेजेस का यूज करके। तो आई विल गो टू सेटिंग्स। यहाँ जाकर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस जाना है यहाँ पेजेस पे। पेजेस पे कर दिया। अब मुझे सोर्स, मेरे पास यहाँ पे गिटहब एक्शंस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी। तो डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, ठीक है, किसी ब्रांच से डिप्लॉय करना है। सपोज मैं मेन से करना चाहता हूँ, तो ब्रांच मुझे चूज करनी पड़ेगी। मेन से करूँ या कॉन्टैक्ट पेज से? मेन से करते हैं चलो। एंड आई हैव जस्ट टू क्लिक द सेव। यस, अब मेरा काम हो चुका है। ठीक है, अब जितना भी बाकी का काम है वो ये खुद कर रहेगा, मुझे बस थोड़ा सा वेट करना है। यू कैन सी कि जो ऑटोमेशन वाला काम था, एक्शन पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है मेरे लिए। जैसे बिल्ड, अब ये चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, फिर बिल्ड का स्टेटस रिपोर्ट होगा, उसके बाद डिप्लॉय होगी। हम रियल टाइम यहाँ ट्रैक कर रहे हैं कि कब मेरी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी। लेट्स सी। ओके, बिल्ड हो गई है। ओके, लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। ओके, तो डिप्लॉय हो गई है। अब मेरे पास यहाँ पे URL आ गया एक, और इसी URL पे मेरी वेबसाइट होस्टेड है। मैं ये URL यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर मैं जाऊँ वापस सेटिंग्स पे, पेजेस पे। यहाँ पर भी आ गई है मेरे पास ये सेम URL, और यहाँ पे अगर मैं विजिट साइट पे क्लिक करूँ तो ये आ गया। अब ये मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं से भी, बस मुझे रिपोजिटरी का नेम पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास ये रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी का नेम मैंने कॉपी कर लिया, इसको हटा दिया। ऑल आई हैव टू डू इज, मुझे बस अपना यूजर नेम डालना पड़ेगा। यूजर नेम क्या है मेरा? स्लैश, एंड मुझे यहाँ पे फिर डालना है अपने रिपोजिटरी का नेम। ठीक, सिर्फ ये फॉर्मेट में इसको लिखते ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ एडेड नहीं है। तो ये था हमने कैसे एक इसको होस्ट करा। ठीक है, और एक लास्ट स्टेप जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि सपोज तुमने एक रिपोजिटरी बना ली, अब तुम चाहते हो इस रिपोजिटरी को डिलीट करना। ठीक है, तो इस रिपोजिटरी को डिलीट कैसे किया जाए? उसके लिए तुम्हें जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आकर तुम्हें सबसे नीचे जाना है, तुम्हें जाना है डेंजर जोन में, क्योंकि सबसे नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिलीट दिस रिपोजिटरी का। आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी। यस, आई हैव रेड दिस, जो भी है। और ये चीज़ जो है ये तुम्हें डिलीट करनी है। एंड वो डिलीट हो गई रिपोजिटरी। ठीक है, इस तरह से तुम डिलीट भी कर सकते हो रिपोजिटरी। अब जो है मैं तुम लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा, इस चीज़ की लिंक। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जितने भी स्टेप्स वगैरह है ना, जितने भी चीज़ें हैं, ब्रांच कैसे बनानी है, फाइल कैसे कमिट करनी है, पुल कैसे ओपन करना है, मर्जिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें इन डेप्थ में थोड़ी सी लिखी हुई है, और ये सब चीज़ें तुम खुद से भी परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं इस रिपोजिटरी का लिंक तुम लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ चैट्स के अंदर। तो अगर एक्सेस करना हो तुम कर सकते हो उधर से। ये लो, एक्सेस कर लेना इसको।
एंड इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है एंड ओके, तो थैंक यू फॉर द सेशन। अब मेरे ख्याल से पृथ्वी, हेलो पृथ्वी। हाँ, यस, अब है बारी हमारे इंसेंटिव्स की एंड असेसमेंट की। अटेंडेंस का लिंक डाल दिया। यस, तो सब अटेंडेंस का फॉर्म प्लीज भर देना, एक्चुअली अभी भर दो। ये क्विज भी शेयर कर दी। यस, ये क्विज भी शेयर हो गई है। इस क्विज में जो भी टॉप परफॉर्मर होंगे उनको मिलेगा लिंक्डइन प्रीमियम। ठीक है, ऑन द स्पॉट हो सकता है मिल जाए तुम्हें, या हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो, उसके बाद मिले। कितनी देर के लिए ओपन है वैसे ये क्विज का? 10 मिनट के लिए ओपन है, उसके बाद बंद हो जाएगा। ओके गाइस, कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई डाउट, या फिर अपकमिंग इवेंट्स के रिलेटेड कोई डाउट? तुम लोग ऐसे मतलब कोई प्रोजेक्ट करोगे मतलब? हाँ, इन फ्यूचर हमारा प्लान है, लाइक 1-2 सेशन के बाद प्लान है हमारा कि एक एआई चैटबॉट या फिर विजन वाला जो है वो सब चीज़ें हम करेंगे अभी यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड? ओके। या फिर अगर ऑन डिमांड भी तुम्हें कुछ लोगों को कुछ चाहिए तो उसके लिए फिर सजेशन दे सकते हो। अच्छा, ठीक है, समझ। गाइस, अटेंडेंस फॉर्म में अपने क्रेडेंशियल सही से भरना, कॉज उसी के बेसिस पे फिर तुम्हें ईमेल हो जाएंगे तुम्हारे सर्टिफिकेट। ठीक है, वरना फिर दिक्कत आएगी वो सर्टिफिकेट भेजने में।
वे एक बात बता अमन। हेलो अमन या पृथ्वी, हाँ कोई भी हाँ बोलो। एक बात बता, क्विज अगर मैंने दूसरी आईडी से दी हो, ठीक है, हम्म। और फॉर्म में अलग आईडी गई हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना? नहीं। जो भी आईडी टॉप पे होगी उस पे मिस डाल देंगे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जो भी आईडी जीतेगी उसको मैसेज डाल देंगे जीमेल। और हो गया तो क्या करना है? हो गया, देन यू कैन लीव। ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, 2 मिनट और बचे हैं, जल्दी जल्दी फिल कर दो। क्विज का टाइम खत्म हो गया, फोन लेने बंद कर दिए। आज रात तक विनर डिक्लेयर हो जाएगा।